Okay. So I told you if we are to take u always negative, h1 is always positive, and focal length of concave mirror is negative. Okay. So without these sign conventions, your numerical will be wrong, right? Then what we are to find? We are to find magnification for nature, image distance v for position of the image, and height of the image, size of the image h2. These things we are to find. So first of all, we used mirror formula. 1 over S is 1 over U plus 1 over V. So 1 over V is 1 over F minus 1 by U. Put in these values. Minus 1 by 18 minus plus. So V comes out to be minus 54 centimeter. Position of image आ गई हमारी, V कितना है? minus 54 centimeter. वंशनूर बेटा आपका थर्ड पीरियड है, ठीक है. सो V इज minus 54 सेंटीमीटर है. पोजीशन हमने फाइंड कर ली और आप देख रहे हो कि ये C से ग्रेटर है. 36 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है और लेफ्ट साइड पे आ रहा है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है, इसको हम साथ साथ रे डायग्राम पे मार्क करते जाते हैं. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो ये जो आपका इमेज डिस्टेंस है, सॉरी ये तो मैंने बियॉन्ड सी रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ है. कल हमने रे डायग्राम बनाया था तो उसमें बस डिस्टेंस मार्क कर लो. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अगेन ये कौन सी पोजीशन है? ये 18 है, दिस इज 36, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 27, उसका डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये कैसे? रे डायग्राम ऑलरेडी यू नो हाउ टू प्लॉट, हाउ टू ड्रॉ. तो ये आपका इमेज डिस्टेंस आ गया 54 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपने लेबल कर देना है कि इमेज डिस्टेंस इज 54 सेंटीमीटर. ठीक है, अदर डिस्टेंसेस वी हैड मार्क्ड यस्टरडे, बस ये एक वी रह गया था 54 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड नेचर ऑफ द इमेज, सो वी विल फाइंड मैग्निफिकेशन. फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू. तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं. माइनस वी ओवर यू. So magnification is -2. Let us comment upon this first of all. Negative sign shows that image is real and inverted. Negative sign shows that image is real and inverted. And magnitude of magnification is 2, which is greater than 1. That shows that image is magnified. Yes, ये object थी, see the size of image, it is magnified. तो वो भी हमारा correct हो गया. ठीक है. So nature of the image from the value of magnification हमें पता चल गया, real, inverted and magnified image is formed. ठीक है, तो आप लिख लीजिए negative sign shows that image is real and inverted and its magnitude is 2, which is greater than 1. That means the image is magnified. ठीक है, its magnitude is 2 greater than 1, which shows that image is magnified. Now one thing is left, हमें इसका साइज भी निकालना है. ठीक है, तो साइज के लिए क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन, वी विल यूज अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, h2 अपॉन h1. so that is equal to मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन आपने निकाल ली -2, h2 फाइंड आउट करना है, h1 is 7. So H2 is minus 14 centimeters. So negative sign again shows that image is inverted. Negative sign shows that image is inverted and real. 14 centimeter is its size. तो डबल है उसका साइज. ऑब्जेक्ट का साइज था 7 सेंटीमीटर, इमेज का साइज आ रहा है 14 सेंटीमीटर. तो ये भी हम मार्क कर देते हैं 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर.
size of object and image we also mark. So this is our complete ray diagram. ये बिल्कुल complete हमारा ray diagram हो गया. This is complete numerical. All right, is that clear, students? And note down, this is numerical number 15 of the main exercise. अगर आपके पास NCERT है तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा मेन एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 186 पे है, उसका 15th क्वेश्चन है. दिस इज 15th क्वेश्चन ऑफ मेन एक्सरसाइज. ठीक है, बुक में स्मॉल एक्सरसाइजेस भी हैं. अब हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है अ कनकेव मिरर. अगर आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी तो मैं रीड आउट कर देती हूँ. सेकेंड क्वेश्चन पेज 171 पे, एनसीईआरटी शॉर्ट एक्सरसाइज. अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image. Those who don't have, please write it. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Image कहाँ पे है? ठीक है. Where is the image located? We are to find image distance. We are to find V here. Okay, fine. So let us do. यहाँ पे size नहीं दिया हुआ, so we will not find the size of image. Size is not given here. So page 171, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन हमने उसका कल कर लिया था, वो पढ़ के सुना देती हूँ. फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 centimeter. So that is plus 16 centimeter. ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है concave mirror. So concave mirror is there, converging mirror is there, and it produces 3 times magnified real image. Real image के लिए magnification नेगेटिव होता है और 3 times magnified है, इसका मतलब magnification कितनी होगी according to the question? -3. Of an object placed at 10 centimeter in front of it. Object distance is 10 centimeter. Again we will put a negative sign because ये object distance है. Where is the image located? यहाँ पे बस एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम मैग्निफिकेशन का, -b/v. एक ही फॉर्मूला यहाँ पे सफिशिएंट है. तो पुट द वैल्यूज, -3 -v -10, माइनस माइनस कैंसल, वी गेट v is -30 सेंटीमीटर. तो v आ गया आपका -30 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन वैसे यहीं तक है, बट इफ यू वांट टू ड्रॉ द रे डायग्राम तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करके इसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ी है, इमेज कहाँ पे बनी है. यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब अगर आप फोकल लेंथ निकालना चाहते हो तो यू हैव टू यूज मिरर फॉर्मूला. हमें H2/H1 फॉर्मूला की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बस इतना ही है क्वेश्चन. ठीक है, लेट अस कम टू न्यूमेरिकल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम द एक्सरसाइज. पेज 186 पे आइए फिर से. पेज 186. लेट अस डू नाउ द न्यूमेरिकल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12. Let us do question number 12 of the exercise. Concave mirror के numericals में if you are having any doubt so you can tell me. ये complete question थे, अगर आपको ये समझ आ गया आप कोई भी question कर सकते हो. Mirrors का any question you can do now. Yes, any doubt if you are having you can tell me before we proceed. Yes students, any doubt? Clear हो गया numerical आपको? All right. So let us do the numericals of convex mirror now. Numericals of convex mirror now. So again page 176 of the exercise, question number 12. Convex mirror पे based है diverging mirror. This is a diverging mirror.
Okay, 12th question. This is 12th question, right? So statement is an object is placed at a distance of 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Again size नहीं दिया हुआ हमें object का, तो हमें image का भी size calculate नहीं करना है, right? So see what is given to us. Object is placed at a distance of 10 centimeter. U is always negative. Okay. Focal length of convex mirror is 15 centimeter, which is always positive. तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना है. फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होती है, आप ड्रॉ ही कर लिया करो साथ में. दिस इज कन्वेक्स मिरर. इट्स फोकस इज टू द राइट ऑफ पोल, सो दैट इज व्हाई इट्स फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. तो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. इसका मतलब सी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर. C is at a distance of 30 centimeter from it. All right. So what they are asking now, find position and nature of the image. Position means V, nature means magnification. These two things we are to find. We are not to find height in this case. Got it? The question you understood? Focal length positive लेनी है अब यहाँ पे, ठीक है. और फर्स्ट भी ड्रॉ द रे डायग्राम कि आपको आइडिया हो जाए V हमारा पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए. देखो इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें, यू नो ऑब्जेक्ट एनीवेयर, तो आपकी एक ही टाइप की इमेज बनती है ना कन्वेक्स मिरर में, याद है आपको. तो ड्रॉ दैट रे डायग्राम, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी. सेकेंड रे दैट अपीयर्स टू पास थ्रू C comes back and here is the image form. जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं वहां पे इमेज बनती है. तो दिस इज इमेज. तो इसका मतलब V आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है. V आपका पॉजिटिव आएगा और फोकल लेंथ से मोस्टली उसके आसपास या कम ही हो सकता है, ठीक है. तो लेट अस सी दैट. अगेन मिरर फॉर्मूला वी विल यूज. 1/f is 1/u plus 1/v. 1/v is 1/f minus 1/u. 1/15 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10. तो टेल मी क्या आएगा V. V निकालिए, कितना आ रहा है बताइए, रेज हैंड. कितना आ रहा है V, रेज हैंड. हाँ जी, किसने हैंड रेज किया, दीपक. यस दीपक. 6 प्लस आ रहा है ना. हाँ जी. हाँ जी, ओके वेरी गुड. सो V इज पॉजिटिव. इसका मतलब देखो फोकल लेंथ से भी कम ही आ रहा है, तो हमारा आंसर हमें पता चल गया. किसी से आपको आंसर पूछने की जरूरत नहीं है कि बता दे मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा. ये देखो फोकस से कम आ रहा है, 15 से कम आएगा, आपका आंसर ऑफ पॉजिटिव आएगा. तो इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बन गई है. योर V इज 6 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ? अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं. सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यू नो इज -V/U. माइनस V कितना आया आपका 6 एंड U इज -10. Minus gets cancelled, your magnification comes out to be plus 0.6. So first of all find the magnification, then we will discuss it. Positive sign shows that image is virtual and erect. Yes, ray diagram हमारे सामने है, ठीक है, virtual and erect ही बनी है image. So positive sign shows that image is virtual and erect, and its magnitude, its value 0.6, that is less than 1. That means image is smaller in size, image is diminished in size. ठीक है, तो पूरी नेचर ऑफ इमेज पता चल गई हमें. इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. कैसे पता चला ये लिखना पड़ेगा आपको. पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन
shows that image is virtual and erect, and its value 0.6 is less than 1, that shows that it is diminished in size. Got it students? Is that clear now? कन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल क्लियर है आपको? देख लो एक बार. इफ यू हैव एनी डाउट विद रे डायग्राम आपने बनाना है. हाइट्स हमने यहाँ पे नहीं मार्क की क्योंकि हाइट की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है? एवरीथिंग क्लियर नाउ? So these kinds of numericals will be there. एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 14th क्वेश्चन जो कन्वेक्स मिरर का है. कंप्लीट क्वेश्चन है. अब वो आप करके बताओगे मुझे. देन आई विल डू इट हियर. सो आई टेल यू द स्टेटमेंट. 14th क्वेश्चन, उसमें हाइट भी निकालनी है आपको. क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर का. सो 14th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature and size. Find the position, nature and size. तीनों चीजें निकालनी है. जैसे हमने कनकेव मिरर का क्वेश्चन किया था, ये कंप्लीट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर. अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं. करिए सॉल्व. मैं पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख देती हूँ. व्हाट आर द पर्टिकुलर्स, व्हाट इज गिवन, देन यू विल सॉल्व. रे डायग्राम यही रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1 is given 5 centimeter. Okay. Distance of object is given 20 centimeter. U is given, माइनस होगा वो, -20. Convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. अब आप देख रहे हो कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे है, पॉजिटिव है. ठीक है? तो यूजिंग f is equal to r/2 you will calculate its focal length 15 centimeter and that is plus positive. All right. Find position, nature and size. Again v, m और h2 आपको कैलकुलेट करना है. चलो करो. ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं. अब आप सॉल्व करके मुझे बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड v. यूज मिरर फॉर्मूला एंड फाइंड v. So here only values I have to change. U, focal length is 15, वो दी हुई है, ये भी 30 है. It's okay. V आप निकालो. U is 20. U जहां पे मर्जी हो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑब्जेक्ट जहां पे मर्जी हो, इस केस में दैट विल नॉट मैटर. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल नॉट मैटर एट ऑल. चलिए हैंड रेज करिए जिसने V निकाल लिया है. वन बाय 15, 1/20. So tell me what is V. पॉजिटिव आना चाहिए, अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर रॉन्ग है. यस दिवांशी रेज हैंड. यस दिवांशी बोलो. मैम 8.5 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर. 8.57 सेंटीमीटर. अगेन इट इज लेस देन फोकल लेंथ. 15 सेंटीमीटर से कम ही है. ठीक है? तो नॉर्मली आपका कन्वेक्स मिरर में जो V आएगा, इमेज डिस्टेंस है, दैट विल बी लेस देन 15 सेंटीमीटर. दैट विल बी लेस देन फोकल लेंथ. यस गुड. ओके V हो गया. नाउ फाइंड मैग्निफिकेशन. हु विल टेल मी मैग्निफिकेशन? फॉर कैलकुलेटिंग मैग्निफिकेशन आई गिव यू वन एडवाइस. डोंट यूज V इन डेसिमल फॉर्म. जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आया था वो यूज करिए, उससे आपका बेटर आंसर आएगा. कई बार वो कैंसिल हो जाता है तो आपका पूरा बेटर आंसर आता है. ठीक है? यस हु विल टेल मी नाउ?
काव्या, हैव यू सॉल्व? काव्या, Yes, ma'am. हाँ बताइए मैग्निफिकेशन 0.42. 0.42. 42. 0.42. So what does it indicate? Positive sign shows that image is virtual and erect, and its value is less than 1. That shows that image is smaller in size. Image is diminished. नेचर पता चल गया हमें पूरा. अब हम क्या करेंगे? उसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, H2 upon H1. So who will tell me what is the answer? H2 कितना है? Yes, गुरजोत आप बताओ. मैम इट इज 2.14. 2.14. तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 5 सेंटीमीटर एंड v, ये इमेज का हमारा साइज है 2.14 सेंटीमीटर. सो m इज 0.42, h2 we are to find, and what is h1? that is 5. ठीक है, तो h2 is 0.42 into 5. अगेन आई एडवाइस यू कि मैग्निफिकेशन को यहाँ पे आप फ्रैक्शन में यूज करिए. ठीक है, डेसिमल में हम पूरे प्लेस तक नहीं ना, वो डिवाइड होता तो नहीं लिखते हैं. तो आप यहाँ पे फिर से मैग्निफिकेशन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए तो आपका बेस्ट आंसर आता है. सो दैट इज 2.14 सेंटीमीटर. हैव अ लुक एट कंप्लीट न्यूमेरिकल. यही फॉर्मूले यूज होने हैं मैग्निफिकेशन के और मिरर फॉर्मूला. बस आपके मिरर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए. So if you are able to solve these questions, that means it's done. आपको मिरर्स के न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, और अगर मिरर्स के आ गए हैं तो लेंसेज के भी ऐसे ही हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है बच्चे, तो मिरर्स क्लियर है आपको? ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको जनरल दे रही हूँ. एक मिनट हम देख लें एक्सरसाइज में कोई मिरर का क्वेश्चन और तो नहीं रह गया हमारा. 12th, 14th एंड 15th वी हैव डन. बाकी लेंसेज की है. यस, सो वी हैव डन दैट. एक्सरसाइज में से मिरर्स के क्वेश्चंस कवर हो गए. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन. वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाउ वी विल डू. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट. हाँ जी, लिखिए. शो that focal length of a mirror, show that focal length of a mirror is related to magnification through this formula. क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? फॉर्मूले बस वही हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला -v/u और मिरर फॉर्मूला. इन्हीं को यूज करके आपको ये रिलेशन निकालना है, डिराइव करना है. सो कैन यू डू दैट? लेट्स ट्राई. ओके, सो 1/f is 1/u plus 1/v, राइट? u नहीं है इस फॉर्मूला में, तो हम u को एलिमिनेट करेंगे. m is -v/u. so how can you write u? -v/m. ठीक है, u को आप ऐसे भी लिख सकते हो. चलो ट्राई करिए. इस फॉर्म में आपको लेके आना है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को. -v/u है ना, वी कैन डू दिस थिंग कि हम 1/u की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं. सी, 1/u कैन बी रिटन एज 1/f minus 1/v फ्रॉम मिरर फॉर्मूला. तो यू कैन राइट मैग्निफिकेशन एज -v into 1/u लिख सकते हो. v over u is equivalent to this, no problem. Now put this value of 1/u here. -v 1/f minus 1/v. Now open this bracket, you will get the answer. ठीक है, वन ये आ गया -v/f plus 1. टेक द LCM.
हो गया प्रूफ? ठीक है, इज दैट ओके? हो गया प्रूफ? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस वे फॉर्मूले वही है, बस ये एप्लीकेशन करनी है आपको. You have to apply the concept only. That's the thing that is required. All right, students. So this way you can derive anything that is wanted. अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ. Prove that m is equal to f upon f minus u. Now do this yourself. Same way you have to prove that magnification of a mirror is related to focal length through this relation. कर सकते हैं प्रूव? अब इसमें v नहीं है तो आप क्या करेंगे? v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है, या यहाँ से v इज इक्वल टू माइनस एम यू इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, v एलिमिनेट करना है अब यहाँ पे. तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से v इज इक्वल टू माइनस एम यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा. यस, सॉल्व इट. यस, सॉल्व नाउ and raise hand after doing it. I'll check your copy. देखते हैं कौन फर्स्ट कर लेता है, सबसे पहले कौन करता है. रेज हैंड आफ्टर डूइंग दिस. नहीं हो रहा? शुड आई डू? नहीं हो रहा बच्चे? चलो मैं कर देती हूँ, फिर देख लो. एज आई टोल्ड यू, we will write v is minus mu from here and put it here. 1 over f is 1 over u minus 1 over mu. 1 over f is 1 over u, 1 minus 1 by m. 1 by u we have taken out. All right. अब यहां से आपको m बाहर निकालना है. ठीक है, यू हैव टू टेक आउट m फ्रॉम हियर. तो करिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप m को यहीं रहने दो. ठीक है, टेक एलसीएम. u gets cancelled and you get, after inverting you get this. So this is the, देखिए वही दो फॉर्मूले यूज किए हैं, बट हमने अब इसको m को बाहर निकाल लिया बस. ठीक है, we have taken out just m out. Okay, so this way questions may be asked, application based questions may be asked. Now write one question to do at home. एक होमवर्क ले लो. अब देखते हैं कल आप सॉल्व कर सकते हो मिरर्स का क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम हम करते हैं इसको. ठीक है, तो नोट डाउन द स्टेटमेंट. a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. A concave mirror of radius of curvature 40 centimeter produces a 4 times magnified and erect image of an object. 4 times magnified and erect image of the object
where is the object located? So mind it, this question is different. Here they are not asking where is the image formed, they are asking where is the object located. आपको u निकालना है इसमें, ठीक है? In this question you have to find u. Okay, one more hint, magnified and erect. That means what is the nature of image in this case? Real or virtual? ये virtual image होगी क्योंकि erect है. Because you know concave mirror can form magnified image, real also, virtual also. When does it form magnified real image? When the object is kept between C and F. When does it form a virtual and magnified image? When object is kept between F and P. तो ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होती है, ये वो वाला केस, ठीक है? तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और यू निकालना है. अब आप इसको कर सकते हो. आंसर बता रही हूँ, आप टैली करना. आंसर इज -15 सेंटीमीटर. यू विल बी -15 सेंटीमीटर, ठीक है? यू इज -15 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, हो जाएगा? समझ आ गई न्यूमेरिकल्स आपको? सो दिस इज ओवर विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में. वी विल बी स्टार्टिंग विद रिफ्रैक्शन